I really try so hard, but I'm just not able to lose my weight. I think it is heredity problem. I was such a bright student, but I got married so early, and after my marriage I never got the opportunity. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ruchi and this is a new episode on Unfiltered Life. Go and check yourself. Can you just go and check your surroundings? Are you also one of them who is victim of your own situation or your circumstances or your anything? It could be anything actually around you because you can blame it on anyone for not doing what you should do. Victim mindset is a biggest enemy of anybody, not the destiny, not the situation, not anything else in your life, but your own mindset, but your own attitude towards your life, towards your circumstances or whatever. That is your biggest enemy. Stop blaming, stop putting finger on anyone and just watch yourself in the mirror, get inside yourself and see कि हो क्या रहा है एक्चुअली. अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो जहाँ पे आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, आप दुखी हो, सैड हो, अपने आप के बारे में बुरा सोचते हो, नेगेटिव थिंकिंग में हो, डिप्रेशन में हो, जो भी है, so just sit down with yourself and think, are you one of, I'm very sure you are one of those because actually you know what, people only having victim mindset are into this kind of situation. Otherwise यार जो दूसरे कैटेगरी ऑफ पीपल है ना, वो तो कभी इन सब सिचुएशंस को मतलब टेम्पररी होता है बिकॉज लाइफ में पार्ट है, धूप छाँव की तरह. यू विल ऑलवेज हैव गुड पार्ट एंड बैड पार्ट. You will always have troubles, you will always have issues, you will have stress in your life, but that won't stay forever, okay? And at least it won't be something which will make you depressed and all. You will definitely find out some way. As I told you, that the second category of people is like the people who come out of it and no matter what find a solution to their problem, to their issue. Let me tell you, victim mindset कहाँ से आता है? It can be from many reasons. It can be one of your pattern. It can be one of the things कि आप बचपन से जिस तरह की लाइफ जी रहे हो, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आपको उसके कारण आदत आ गई है, या यू आर जस्ट बीइंग कावर्ड बिकॉज आई रियली फील पीपल हु मतलब खुद से वो गट्स नहीं कर पाते. यू रियली नीड गट्स टू डू द थिंग्स व्हाट यू वांट टू डू, टू स्टेप आउट, टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. यू नीड गट्स and if you don't have guts, you will blame it on. You will blame it on some or the other thing, some or the other relation, situation, circumstances, whatever. So if you don't have guts, you actually need to work on your guts. You need to develop your guts in any way, anyhow. Until unless you don't have guts, it's simple that you will be in that situation, how much ever bad it is. So you need to work, you need to think, you need to stand up for yourself and you need to see कि आप जो भी फेस कर रहे हो, अगर आप किसी गलत सिचुएशन में हो, आप क्यों फेस कर रहे हो. आपको अगर सिंपथी की पैटर्न, सिंपथी सीख करने की आदत हो गई है, यू लाइक पीपल टू सिंपथाइज विद यू, यू लाइक टू कीप रिपीटिंग योर इशूज, लेट मी टेल यू, nobody in this world will help you in that. कोई हेल्प कर ही नहीं सकता. और पता है जो आपको सिंपथाइज कर रहे हैं ना, वो लोग भी टाइम टू टाइम बदलते रहेंगे बिकॉज एक इंसान किसी भी सिचुएशन को बहुत लंबे टाइम तक सिंपथाइज नहीं करता है. जो नया नया आपकी लाइफ में सुनेगा ना आपकी प्रॉब्लम, आपके इशूज के, ओ this happened, that happened, थोड़े टाइम तक that person will have sympathy. But if you keep repeating that kind of cribbing, complaining or maybe just blaming, so that person will get irritated. Okay, done, हो गया, हो गया, it's enough. Now you have to get up, stand up and do something about it. कब तक आप complain करोगे, कब तक आप sympathize करने की expectation करोगे, and it is not taking you anywhere. To be very honest, blaming, complaining or not doing anything, because you are not doing anything, you are not even going anywhere, you're just stuck in that situation. And I think there cannot be anything worse than being stuck into a situation or into anything. If you don't respect yourself, honestly, even your own parents will not respect you. Your own closest people will not be able to respect you because you can only gain something from outside when you have it inside. ये तो लॉ है. आपकी रिस्पेक्ट करने का मतलब ही यही होता है कि अपने आप को आप किसी भी तरह के टॉर्चर, पेन, प्रॉब्लम में पड़े नहीं रहने दोगे. आप उससे आगे बढ़ोगे. यू विल हैव गट्स, यू विल हैव रिस्पेक्ट फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर ओन लाइफ. लेट मी टेल यू, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पता है, जो सिर्फ आप ही के साथ हुई है. हमको ऐसा लगता है हम उस प्रॉब्लम में रहते हैं तो यार ये सबसे बड़ी बात है इस दुनिया की, इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता. जब आप उसमें हो ना तब आपको ऐसा लगेगा. बट लेट मी रियली टेल यू, अगर आपको सबसे पहले ये समझना है ना कि ये आपकी गलत फहमी है कि आपकी ही प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जस्ट गो आउटसाइड, मे बी रीड अबाउट पीपल, नो अबाउट पीपल. बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास. व्हेन यू जस्ट स्टार्ट
लुकिंग फॉर थिंग्स, यू विल सी कि बहुत सारे इश्यूज हैं लोगों के साथ यार, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एंड पीपल आर स्टिल फाइंडिंग आउट वेज to move out of it. A lot of people who have come out of that, so that is your first hope, and you need to make yourself believe it, कि आपको खुद को एफर्ट करना पड़ेगा, कोई आके आपके लिए कुछ नहीं कर सकता until आप नहीं करते हो. So पहली चीज़ जो होती है ना, respect yourself. We are going to talk about few things which are very very important, and for coming out of your situation, if you are stuck into something, if you have some wrong behavior, you have to come out of it. पहली स्टेप होती है respect yourself. अपने आप की, अपनी लाइफ की इतनी रिस्पेक्ट करो, इतनी वैल्यू करो कि अपने आप को किसी भी खराब सड़ी स्टक इज सड़ा, राइट, मतलब कोई चीज़ पड़े पड़े जो सड़ जाती है ना, तो आप ऐसी सिचुएशन में, तो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ बैड सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन. तो आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओन इट, एंड देन मेक अ डिसीजन, मेक अ माइंड सेट दैट मुझे इससे बाहर आना है कैसे भी. और आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, बिल्कुल अंदर से फीलिंग नहीं आ रहा है, तो स्टार्ट लर्निंग अबाउट अदर पीपल, स्टार्ट नोइंग अबाउट अदर पीपल हु हैव fought it, who have come out of it. You will find so many inspiration around you, and once you find it, you decide it, then second step is take the responsibility. कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं होते, जब तक आप गट्स नहीं रखते, जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी ओनरशिप को नहीं लेते. सो सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली. आपको सपोर्ट थोड़ा बहुत मिल सकता है. फ्रेंकली आई डोंट इवन बिलीव कि सपोर्ट मैटर सो मच, बट यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ. नोबडी कैन हेल्प यू, लिटरली नोबडी कैन हेल्प यू. यार आपको कोई बहुत धक्का मार देगा ना, बहुत पुश कर देगा. आई हैव सीन दिस. इवन इफ यू, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू पुश समवन, आप थोड़ा सा पुश कर दोगे और वो पुश के बाद उसके सामने वाला वापस वहीं आके खड़ा हो जाए. वो तभी होगा ओनली एंड ओनली व्हेन यू डू इट, व्हेन यू have a strong mindset to actually come out of it and to work towards your own growth. That's very important. Third point is, you will fall back. You will definitely fall back. Don't be too judgmental towards it, because it is not possible that without failures you achieve something like that. तो failures होंगे, it's a part of life. आप गिरोगे, आप रुकोगे, आप बहुत सारे ऐसे दिन होंगे जब आप सिचुएशन को, या आपने जो भी करने की कोशिश करी, आप उसको नहीं क्रॉस कर पाओगे, और वो आपके फेलियर के डेज होंगे, एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर इट कि इट्स ओके, इट हैपन्स, इट विल हैपन. बट इट डज नॉट मीन दैट उसको सोच के हम और आगे के दिन खराब करें. नेक्स्ट थिंग इज वन स्टेप एट अ टाइम. This is very very important thing, one day at a time, one step at a time, maybe sometimes just one act at a time. It's okay. डोंट थिंक ऑफ कि मुझे कितना कुछ करना है. कई बार होता है हम बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ में हैं, हम दुखी हैं, इमोशनल स्ट्रेस है या कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कोई भी टाइप का स्ट्रेस हो सकता है. आप ना सीधे से फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर फोकस मत करो इतना ज़्यादा कि मुझे कहाँ तक जाना है. वो इट्स लाइक दैट, जब हम यहाँ बैठ के अगर हमको बहुत लंबा रास्ता तय करना है और हम सीधे एंड रिजल्ट का सोचते हैं कि यार इतना दूर है, वो स्ट्रेस देता है, एंड इट डजंट हेल्प यू. नेक्स्ट थिंग इज मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन योर सेल्फ एज वेल, क्योंकि it's about you, it's about your mind and body, and you have to prepare your mind. क्योंकि mind वो चीज़ होती है जिसके ऊपर आपको, जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हो तो आपका माइंड ना मोटिवेट होना या फिर पॉजिटिवली सोचना, प्रोडक्टिवली सोचना बहुत मुश्किल कर देता है. फॉर दैट यू शुड वर्क ऑन इट, एंड आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल वर्क, सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेज, योगा, dancing, some form of act, which you're working, sweating, working out, moving, maybe walking, running, whatever, spending time in nature, जो भी आप चूज़ करते हो, ऐसा कुछ ज़रूर करो, क्योंकि आपके माइंड और बॉडी को आपको उस तरह से प्रिपेयर करना है. इट इज़ एग्जैक्टली लाइक जो हम कहीं जाने के लिए तैयारी करते हैं ना, तो हमें इस लाइफ को उस तरह से चलाने के लिए, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अपने माइंड और बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा. और माइंड और बॉडी दोनों प्रिपेयर होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप स्वेट करते हैं, जब आप अपनी बॉडी पे काम करते हैं. एंड क्योंकि जब आप अपनी बॉडी पे काम करते हैं तो आप वो वाले हॉर्मोन्स क्रिएट करते हैं जो बहुत पॉजिटिव होते हैं और जो आपको वेरी नेचुरल वे में मोटिवेट करते हैं और हेल्प करते हैं टूवर्ड्स योर जर्नी. सो नेक्स्ट थिंग इज प्लीज डोंट बी टू क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ, नॉट एट ऑल. कि मतलब अगर आपको ऐसा है कि आपने बहुत लंबे टाइम तक कुछ गलत कर दिया, सह लिया या वॉट एवर, सो आप उस जोन में मत जाओ कि मैंने क्या गलत कर दिया, जो होना था वो हो गया, इट्स डन, इट्स
इट्स ओवर. नाउ यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट कि अब क्या करना है. कई बार हम बहुत सारा लंबा टाइम जब किसी चीज़ में बिता देते हैं ना, तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि ये क्या हो गया. और अगर आप उस चीज़ पे जाके सोचोगे ना, अगेन वो डिप्रेसिव थॉट है. सो यू कांट डू दिस. डोंट बी टू क्रिटिकल फॉर योर सेल्फ, because it's not going to help you. Very simply, it's not going to help you. Okay, next thing is you have to be so conscious and sensitive about your environment as in, अगर आप किस तरह के लोगों में बैठे हो, लोग हो, आप क्या शोज देख रहे हो, आप टीवी पे क्या देख रहे हो, आप म्यूजिक कौन सा सुन रहे हो. जैसे बोला जाता है ना कि जब हम हार्ट ब्रोकन होते हैं तो अवॉइड सैड सॉन्ग्स. वो सैड सॉन्ग सुन के ना क्या होता है कि आपको जो नहीं सोचना है या जिन फीलिंग्स में नहीं जाना है, आप उसी फीलिंग में जाते हो. सो स्टॉप, अवॉइड इट टोटली. जस्ट लाइक दैट, जब आप अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए काम कर रहे हो, अपनी लाइफ को बदलना चाह रहे हो, उस टाइम पर यू कांट अफोर्ड कि आपके आसपास ऐसे लोग रहें जो आपको क्रिटिसाइज करें, आपको कुछ भी नेगेटिव बोले, लिटरली आपको अकेले रहना पड़े, आपको सबसे अपने आप को आइसोलेट करना पड़े. डू it no matter what, but you have to make sure your energy is very pure. Your energies, I am not saying कि आप गलत नहीं कर रहे होगे, मे बी आप गलत चीज़ें कर रहे होगे, मे बी कुछ चीज़ें आपके रूटीन में नहीं होंगी, परफेक्ट नहीं होंगी. इट्स ओके, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट हैव टू बी वर्किंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन. परफेक्शन डजंट मैटर हियर. सो यू मेक श्योर दैट आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी एनवायरनमेंट है, वो आपके फेवर में होना चाहिए, वो आपकी ग्रोथ में सपोर्टिव होना चाहिए एट एनी कॉस्ट. आई वुड डेफिनेटली से try to keep yourself sane as in do something for your mind. I would always say meditation is the best thing. मेडिटेशन को लोग बहुत बड़ा हवा समझ लेते हैं, कई बार हमसे नहीं होता, हमसे एक जगह बैठते नहीं बनता. मेडिटेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि अपने आप को हर चीज़ से डिस्कनेक्ट करके रिलैक्स करना, मेंटली रिलैक्स करना. तो आपके लिए मेंटल रिलैक्सेशन जिस भी फॉर्मेट में चलता हो, म्यूज़िक सुनने के फॉर्मेट में, डांस के फॉर्मेट में, अकेले बैठ जाने में, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, डू दैट, बट डू सम सॉर्ट ऑफ मेंटल रिलैक्सेशन एवरी डे. I'll tell you because this will really help you a lot. So these are some of those small steps that you can take and you can work on yourself because nothing but only you can help yourself to not be a victim, to come out of your situation and to work towards your growth. I'll also tell you that victim situation और victim mindset ऐसी चीज़ नहीं होती जो एक बार आती है और एक बार जाती है. It is something, it keeps happening in your life. जब हमारे साथ कभी कुछ बहुत बुरा आता है, हम उस तरह की सिचुएशन में पुल लाइक ना ड्रैग हो जाते हैं एक्चुअली, कि हम कुछ बहुत बुरा फेस कर चुके हैं रिलेशन वाइज, या एकदम से कुछ इंसिडेंट हो गया. तो जब बुरी सोच चलने लग जाती है ना, तो उस टाइम पे अपने आप से ऐसा जाता है, ब्लेम्स जाते हैं, इसने ऐसा क्यों करा, उसने ऐसा क्यों करा. आप सबको उस नज़रिए से देखते हो, बट लोगों ने अपनी किस्मत को भी चेंज कर दिया है. बिकॉज आई really feel that when you genuinely put effort, when you 100% get dedicated, no, तो मुझे लगता है शायद भगवान भी देखते हैं और even he wants to change maybe what he has written or what is written. So I really believe that, and you have to believe in that, because trust me, you will see people literally altering everything. जिस भी सिचुएशन में थे, दे हैव जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग अबाउट इट. हाउ डिड दैट हैपन, टेल मी. लोग उसको मैजिक का नाम दे देते हैं, बट आई विल टेल यू दैट दिस इज रियली देयर ओन बिलीव. यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Trust me, you have to believe in yourself because you can do it. You really can do it if you trust me. I mean it very genuinely that you can do it. Believe in yourself and only be with people and places which make you believe in yourself. Don't go to any place which do any wrong or any negative thing to you. So this is something very important. Just take care of yourself, value your life, value your everything what you have got in this life, and this is just to enjoy this life. The life is all about being happy, working on yourself. और ठीक है, स्ट्रेस है, दुख है, जो भी, पर वो भी बहुत कुछ सिखाता है. I really believe that. Now I can say that very strongly. वो सारी चीज़ें को भी जब हम उस तरह से समझ पाएंगे कि it is also helpful, it contributes to your growth, it contributes to your learning, your experiences, and it is a part of life. It is exactly undeniable part. तो स्ट्रेस आएगा, दुख आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, बट you also need to develop a pattern, develop an attitude कि you can always cross everything. Everything is workable and you can actually come out of any situation. People in the most negative kind of environment also, they make it happen. How?
they really make it happen just by following these things, that they know where to focus. You need to know where to focus. Your focus is everything. Your most important thing is that you have to focus on the right thing. You have to focus on what you have to do, and you don't have to focus on who did what to you and why did that happen. You don't even have to go into the situation. You never have to repeat the bad things in your life or in your mind. क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी हुआ, टेक द ओनरशिप दैट उसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी था, आपने वो होने दिया. और अगर नहीं भी था तो इट वॉज आउट ऑफ योर कंट्रोल. समटाइम्स, many a time, situation and things and people are just out of your control. You can't control everything in your life and you have to accept it. So be it, it's okay. So just come out of it and take care of yourself and love yourself. Love yourself the most, and loving yourself actually mean this, the most important thing. So that's all. I hope it's going to help you, and I'm very sure if you do these things, so there is nothing which is not achievable in your life. You just need to take care of yourself in the right way. That's all. So take care. Thank you so much for being here.